So, good evening, friends. We are going to discuss on the topic of Wheatstone bridge. So, that is application of Wheatstone bridge. So, this Wheatstone bridge we are using it to measure the temperature. So, we all know that this Wheatstone bridge consists of four resistors. So, in between there is a one more resistor, that is a galvanometer resistor. So, among these four resistors, uh, two are known registers. So two are known registers. Here I can take P and Q, and one is variable registers. So variable registers, here I can take as a R. So this I can vary this register R. So to get a Ig value 0, then only the circuit is balanced. And the one more register is, I can say, the unknown register. So that unknown register is our yes. So with the help of this we are measuring the temperature. सी अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में हमको क्या पता है कि चार रजिस्टर्स पता है, और इन बिटवीन चार रजिस्टर और एक रजिस्टर रहता है, वो गैल्वामीटर रजिस्टर रहता है. सो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमेशा दो रजिस्टर्स का वैल्यूज हमें पता रहता है. सो इधर मैंने P और Q का रजिस्टर्स वैल्यू वो मैंने नोन रजिस्टर्स लिया हूँ. R वैल्यू इज अ अननोन रजिस्टर. सो sorry, R value is a variable register and S is the unknown register. So R को मैं adjust कर सकता हूँ so that I will get a deflection 0 in the galvanometer. So तब तक के लिए ये variable registers को vary करने का और unknown register को calculations करने का with the help of P by Q is equal to R by S. So with the help of this equation we can calculate the value of S. So now to measure the temperature, so what I will do is, at S point I will take one platinum wire, and the platinum wire is wound to some metal. So the initially what I will do is, initially I will place this in a ice bath. So once I place this ice bath, then I will make a adjustment of R value, so that R को मैंने adjust किया, so that the resistance of P is equal to Q and our Ig is equal to 0. So ये यस रजिस्टर्स को मैंने क्या किया कि आइस बाथ में प्लेस किया. तो आइस बाथ में डिप करने के बाद मैंने क्या किया, आर वैल्यू को एडजस्ट किया. सो आर वैल्यू को एडजस्ट करके मैंने क्या किया, आईजी वैल्यू को 0 किया. सो आईजी वैल्यू को 0 किया और पी और क्यू को मैंने सेम लिया. सो दोनों का रजिस्टर सेम मैंने लिया. सो ये करने के बाद, सो what I will get is, according to our equation, Wheatstone bridge equation, P by Q is equal to R by S. So P by Q is equal to R by S. So now आइस बाथ में प्लेस करने के बाद, सो यस का वैल्यू, रजिस्टर्स का यस का वैल्यू क्या होता है कि आर नॉट होता है. तो ये हमको पता नहीं, ये आर नॉट को कैलकुलेशंस करने का है. सो टू मेजर दिस आर नॉट, सी आइस बाथ का तो टेम्परेचर हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में. सो टू मेजर दिस आर नॉट I will cross multiply, then what will happen, RQ divided by P आता है. So we know that P is equal to Q. So P and Q दोनों सेम है तो ये कैंसिल होता है. So what I will get, R naught is equal to R. So next what I will do is, I will place this register in a
स्टीम, सो स्टीम विच इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, सो ये तो 100 डिग्री सेल्सियस, सो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग बॉयल कर सकते हैं। सो स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने ये यस रजिस्टर्स को स्टीम में डिप किया। सो डिप करने के बाद ना अगेन व्हाट आई विल डू, अगेन आई विल एडजस्ट द वैल्यू ऑफ आर। सो एडजस्ट करने के बाद अगेन आई जी इक्वल्स टू बिकम्स इक्वल टू 0। सो अगेन दिस P by Q is equal to R by S। सो यस का रजिस्टर्स मैंने इधर क्या ले रहा हूँ, इधर मैंने क्या लिया है कि यस का रजिस्टर्स R100 लिया हूँ, इधर यस का रजिस्टर्स मैंने क्या लिया था, R0 लिया था। सो यस इंस्टेड ऑफ यस व्हाट आई एम राइटिंग इज R100। सो again the cross multiplication, so I need to find out the unknown value of resistors, that is R100। so RQ divided by P equation हुआ, so P and Q cancel, again what I will get, R100 is equal to R। इधर मैंने वेरिएबल रजिस्टर्स को एडजस्ट कर रहा हूँ, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू डिफरेंट रहता है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर ये आर डैश लेता हूँ। नेक्स्ट इज ए यस रजिस्टर्स को मैं क्या करता हूँ कि आई विल प्लेस इन अ बाथ, I will place in a bath whose temperature is T डिग्री सेल्सियस। सो प्लैटिनम वायर को मैं क्या करता हूँ कि एक बाथ में डिप करता हूँ, उसका टेम्परेचर कितना रहता है, उसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस रहता है। सो अभी मेरा इक्वेशंस क्या होता है, तो फिर से मेरे को वेरिएबल रजिस्टर्स को एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो वेरिएबल रजिस्टर्स को अभी R डबल डैश लेता हूँ, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा आई जी वैल्यू 0 होना चाहिए, तो आई जी वैल्यू 0 होने तक ये R डबल डैश को एडजस्ट करता हूँ। तो करने के बाद ना मेरा यस रजिस्टर्स का मैंने R डबल डैश से इंडिकेशन करता हूँ, सॉरी R डबल डैश तो इधर लिया हूँ, तो RT से मैं इंडिकेशन करता हूँ। सो आवर इक्वेशन इज P by Q is equal to R by S। so instead of R it has become a R double dash after placing in a steam bath, and the S value becomes a RT। so the S value becomes RT। so now again this cross multiplication, so RT is equal to R double dash Q divided by P, so again Q P cancel, so what I will get, RT is equal to R double dash। so with the help of these three equations I can calculate a temperature of unknown liquid. See, in the first year means class 11, we have studied that whenever we are heating some material, thermal expansion will occur, and that thermal expansion depends upon the coefficient of linear expansion। सो अगर मैं एक मटेरियल को हीट कर रहा हूँ, सो अगर ये मटेरियल को मैंने एनी मटेरियल को मैं हीट कर रहा हूँ, तो हीट करते समय व्हाट विल हैपन, देयर मे बी अ थर्मल एक्सपांशन। ए थर्मल एक्सपांशन मीन्स देयर इज अ चेंज इन अ लेंथ, व्हाट आई एम टेकिंग इट एज अ डेल्टा एल। सो दिस डेल्टा एल डिपेंड्स अपॉन, this delta L is directly proportional to original length, and this delta L is directly proportional to a change in a temperature. So to remove this constant of proportionality, what we will take is alpha. Alpha is coefficient of linear expansion. So similarly, so this we have studied in a class 11, हमने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि एक मटेरियल को हमने हीट सप्लाई किया तो वो मटेरियल एक्सपांशन होता है, उसको थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं। सो
वट एवर द चेंज इन लेंथ, तो लेंथ उसका चेंज रहता है, सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मटेरियल रहता है, सो दैट इज द ओरिजिनल मटेरियल ऑफ द लेंथ रहता है, और दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन ए टेम्परेचर। सो इनिशियली कितना टेम्परेचर रहता है और हम लोग कितना टेम्परेचर भेजते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो अल्फा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, एक एक मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अलग ही रहता है। तो इसके हिसाब से हमारा इधर प्लैटिनम वायर है तो उसका भी एक कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन रहता है, तो उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम R0 टू R100। हमने आइस बाथ से स्टीम तक हमने टेम्परेचर चेंज किया है, तो इसके लिए ना हमारे इक्वेशंस क्या होता है, R100 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारा चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। सो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 100 माइनस 0, so this delta T I have directly taken it as a 100 degree Celsius. So here again once again I will write this equation. So R100 is equal to R0 1 plus alpha into delta T. So similarly, so this equation I can call it as a one equation. Similarly, I don't know the value of temperature of the bath, so to calculate again my equation will come RT is equal to R0 1 plus alpha into T, because we don't know the value of T, उसका टेम्परेचर कितना है पता नहीं, हम लोगों को उसी को ही फाइंड आउट करने का है। सो दिस विल बिकम, दिस इक्वेशन बिकम्स अ ट्रू इक्वेशन। See, what I am feeling is you might be facing in getting this equation. So उसके लिए थोड़ा फर्स्ट ईयर का मैं रिकॉल करता हूँ। See this delta L को मैं क्या लिख सकता हूँ, L2 माइनस L1, सॉरी नहीं तो दिस चेंज इन अ लेंथ। सो इनिशियली लेंथ को L1 लेता हूँ, सॉरी L, so what I will take is L2 और L1 final length. So initial length is L1 और बाद में चेंज हुआ तो वो टोटल लेंथ कितना हुआ L2. So delta L is L2 minus L1. So alpha as it is. So this initial length is L1. So delta T is nothing but T2 minus T1. So this is all related to first year. So once this L1 goes here, so this becomes a plus L1 into alpha L1 into T2 minus T1. So this T2 minus T1 I can directly write it as a delta T. So L1 I will take it as a common, so 1 plus alpha into delta T. So L2 becomes L2 equal to L1 into 1 plus alpha into delta T. So similarly what we are getting is R100 is equal to initial temperature is R0, so 1 plus alpha into delta T. तो दिस इक्वेशन को हमने ऐसे डिराइव किया था। सो ये दो इक्वेशंस मिलने के बाद सो इजीली वी कैन कैलकुलेट दिस टी वैल्यू। सो टेम्परेचर ऑफ द बाथ मैंने पहले आइस का लिया था, उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पता है, स्टीम का 100 डिग्री सेल्सियस पता है, वो दोनों लेके हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ अननोन बाथ का हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। सो this equation I can rewrite like this. So this equation 1 को R100 minus R0 divided by R0 into 100, so this will be equal to alpha. So similarly I can write a second equation RT minus R0 divided by R0 into T, that will be equal to alpha. So this is equation number 3 and this is equation number 4. So
फ्रॉम 3 and 4 हम लोग ये दोनों इक्वेट कर सकता हूँ. सो 3 and 4 को इक्वेट करो. सो दोनों अल्फ़ा अल्फ़ा है, तो इसके लिए ना माई इक्वेशन विल बिकम्स R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू 100, R0 इंटू 100. So this will becomes equal to RT minus R0 divided by R0 into T. So again a cross multiplication. So this R0 get cancelled. So what is remaining is when I cross multiply, so T will come here. So RT minus R0 as it is divided by R100 minus R0, and this 100 goes here, so this will become here. So this is the temperature of unknown resistors का फॉर्मूला हुआ. टेम्परेचर का अननोन रजिस्टर्स का फॉर्मूला. सो लेट मी रिकॉल ऑल द थिंग्स. सो हम लोगों को पता है कि हमने 4 रजिस्टर्स को लिया. 4 रजिस्टर्स के बीच में एक गैलोमीटर रजिस्टर्स प्लेस किया हूँ. तो 2 रजिस्टर्स का वैल्यू हमको पता है P एंड Q, और एक अननोन रजिस्टर से दैट इज S, और एक वेरिएबल रजिस्टर्स R. सो ये करने के बाद मैंने इसको S रजिस्टर्स को एक प्लैटिनम वायर से बांधा, और बाद में इसको आइस बाथ में डिप किया. सो डिप करने के बाद ना इसका रजिस्टर्स मैंने R0 करके लिया, और R को वेरी किया, P एंड Q को सेम रजिस्टर्स अप्लाई किया, देन R को वेरी करके IG वैल्यू 0 निकाला. सो IG वैल्यू 0 निकालने के बाद P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ. तो बैलेंस होने के बाद ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं. बाद में क्या होता है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय R0. R इज हमारा ये वेरिएबल रजिस्टर्स हुआ, R0 इज नथिंग बट हमारा आइस बात रखने के बाद जो टेम्परेचर रहता है, तो उसको हम लोगों ने R0 करके मेंशन किया. तो बाद में वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद व्हाट वी विल गेट इज R0 इक्वल टू R. नेक्स्ट मैंने उसको स्टीम वायर को स्टीम में प्लेस किया, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था. तो अननोन रजिस्टर्स को मैंने R100 करके लिया, और ये वेरिएबल रजिस्टर्स को मैंने R डैश करके लिया. सो R डैश से मैंने रजिस्टर्स एडजस्ट किया, तो डिफ्लेक्शंस 0 आया. देन आई यूज आवर प्रिंसिपल formula, that is P by Q is equal to R by S. So here R को छोड़ के हमने R डैश करके लिया था. सो इसके लिए P by Q is equal to, instead of R we have taken R dash and then R100. नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद what we will get is R100 is equal to R dash Q by P. So this is R dash, मैंने इंस्टेड ऑफ R we have taken R dash, क्योंकि ये R वैल्यू का और ये R dash का वैल्यू अलग ही रहता है, क्योंकि IG को हम लोग 0 करने के लिए रजिस्टर्स को वेरी करते हैं. तो R dash R100 इज इक्वल टू R dash. तो स्टीम में रखने के बाद R100 इज इक्वल टू R dash, और आइस में रखने के बाद R0 इक्वल टू R आता है. नेक्स्ट बात हुज अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से, मतलब टेम्परेचर जिसका T डिग्री सेल्सियस है उसका हम लोगों को मेजरमेंट करने का है. तभी मेरा प्लैटिनम वायर का रजिस्टर्स मैंने क्या लिया, RT करके लिया. तो फिर से हमको क्या करने का, IG इक्वल टू 0. तो IG इक्वल टू 0 करने के लिए मैंने क्या किया, R डबल डैश को एडजस्ट किया. तो वेरिएबल रजिस्टर्स को मैंने एडजस्ट किया, तो उसको नोट डाउन R डबल डैश लिया. सो देन P बाई क्यू इज इक्वल टू R डबल डैश डिवाइडेड बाय RT. RT इज अननोन रजिस्टर, उसका रजिस्टर्स हमको पता नहीं है. ये R डबल डैश वेरिएबल रजिस्टर्स. सो हम लोगों को P और Q का वैल्यू सेम ही लिया हूँ. तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ना व्हाट आई विल गेट इज
आर टी इज इक्वल टू आर डबल डैश क्यू बाई पी, सो आर टी इक्वल टू आर डबल डैश। सो 3 चीज़ हमने फॉलो की कि पहले आइस बाथ, स्टीम और बाथ। नेक्स्ट कि हम लोग फर्स्ट ईयर का थोड़ा रिकॉल किए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, कि एक मटेरियल को हम लोग हीट किए तो वो थर्मल एक्सपांशन होता है तो उसका लेंथ चेंजेस होता है। तो इसका लेंथ यल था तो डेल्टा यल हुआ चेंज इन लेंथ। सो डेल्टा यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ दैट मेटल एंड which is also directly proportional to change in a temperature. So this constant of proportionality we have taken outside, so what we will get is delta L is equal to alpha into L into delta T. तो बाद में हमारा टेम्परेचर आइस बाथ से स्टीम तक चेंजेस हुआ। सो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसका रेजिस्टेंस मैंने आर नॉट लिया था और स्टीम में आर 100 लिया था। तो बाद में हमारा इक्वेशंस क्या होता है, आर 100 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। सो द सेम इक्वेशन आई हैव री रिटर्न, आर 100 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100 माइनस 0 इज 100 डिग्री सेल्सियस। और बाद में हमारा टेम्परेचर अननोन टेम्परेचर को कैलकुलेशंस करने के लिए मैंने आर टी लिया, तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। सो आइस बाथ से स्टीम को कंपैरिजन करने के बाद ये इक्वेशन आया, और आइस बाथ से अननोन टेम्परेचर को कंपैरिजन करने के लिए ये इक्वेशन आया। सो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो ये दो इक्वेशंस हुआ। सो ये दो इक्वेशंस होने के बाद इसको ही मैंने रीराइट किया, क्योंकि मेरे को अल्फा चाहिए, दोनों का मटेरियल सेम ही है क्योंकि प्लैटिनम वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो टू गेट अ अल्फा अगेन मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन इज देयर। सो क्या होता है, आर 100 माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू 100 होता है अल्फा। ये फर्स्ट इक्वेशन री रिटर्न करने के बाद, और ये सेकेंड इक्वेशन आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी होता है। सो अल्फा, सो दोनों इक्वेशंस हुआ। सो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया हूँ, क्योंकि प्लैटिनम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन दोनों मटेरियल का सेम ही है, अल्फा अल्फा। सो दोनों कंपेयर इक्वेट करने के बाद व्हाट आई विल गेट इज, सो आर 100 माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू 100 इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी। सो टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर 100 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू 100 into 100. So this is how we are calculating the temperature of the unknown temperature of the bath with the help of Wheatstone bridge. So thank you.